भी ऑलमोस्ट कवर। कोई क्वेश्चन टाइप रह जाएगा तो वो फिर मुझे बता दीजिएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रह गए थे, और इसके अलावा यस नो एंड नॉट गिवन रह गया था, और लास्ट पे एक समरी कंप्लीशन रह गया था, और वो तीनों क्वेश्चंस आज के लेक्चर का पार्ट हैं। ट्रू फॉल्स जो नॉट गिवन हमने ऑलरेडी किए हैं वो बड़े इजी थे फाइंड आउट करना, और डायरेक्ट आपको आप एक एक ही स्टेटमेंट पढ़ते थे और आपको उसी एक स्टेटमेंट को रीड करके अपना आंसर मिल जाता था, दैट आइदर इट्स ट्रू फॉल्स, अगर आप चीज़ को अच्छे से समझ जाओ वहाँ पे, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। यस नो थोड़े से साउंड सिमिलर, द नेम इज सिमिलर, बट इनको इनके आंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेंटेंस इनफ नहीं होता। समटाइम्स अगर होता भी है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट आंसर, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, एंड देन सो इट्स मोर ऑन द कॉम्प्रिहेंशन साइड के आपको एक समराइज करके उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग आप उसका आंसर मार्क करते हो। समरी कंप्लीशन जो कर रहे हैं, समरी कंप्लीशन इज ऑलवेज अ समरी ऑफ आइदर वन और टू passages from the given passages. The first thing that you need to identify is to find out that from where or from where which passage the summary has come from, and then you will have to solve it. It is very simple. Again, it is more of like fill in the blanks and notes completion. But again, the thing is that they have made it more complex, because here you will have to understand the meaning and then have to identify the right word as an answer. Multiple choice questions seems to be very difficult because we have a lot of content to read, and then passage and then identify the answer, but they are technically very simple, because here the skimming portion is sort of sorted already, because they have asked you from first paragraph. You don't need to find out from where the question has come. You only need to read the first passage, and then you have to mark the answer. There are two ways of solving these questions. Either you can read the options first, you can highlight the words of the options, or you can do the passage first and then try to match the meaning of the passage with the options. If you do the options first, you will have to read the options again later, because meanwhile you will reading the passage, you kind of forget the core idea what options were saying. So here we will try to save our time and we will read the passage first, and from that mindset of and the idea and the meaning we have excluded from the passage, we will try to match it with the given options. So this way we might end up with the right answer, and we might save some seconds. As the first question is saying that write the correct letter. Okay, so this one is not about that. What is the writer doing in the first passage? What is the writer doing in the first passage? What is the first passage? Here is the first passage. You need here you have to increase the speed of reading because you have a lot to read, a lot. For this, you have to read the whole passage. And it's not like that you can read the first line, the last line, as I told you, in matching headings, and you can read also somewhere in between. No, you will have to understand the whole meaning of the first passage. Only then you can select the right option. फॉर दैट आपको अपनी रीडिंग को थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ेगा। अगर आप इसको पढ़ रहे हो, वाइल यू आर रीडिंग इट, योर ब्रेन इज एबल टू कन्वर्ट इन उर्दू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। Okay, so if I'm reading, there has a long been a general assumption. So meanwhile, my brain is also converting it into Urdu and making a story. Or what you can do is you can directly do it in Urdu. Okay, बहुत सा पहले general assumption क्या थी कि humans essentially selfish थे. We are apparently हम ruthless होते हैं, strong impulses to compete against each other for resources. Okay, so हम obviously हम apparently ruthless लगते हैं because we need to be very uh, selfish,
for the resources and for the power. If we are kind to one another, it is usually because we have ulterior motives. If we are good, only because we have to consent. Okay. So here different opinions being given, that when we are selfish, why we are kind. It is something like that. So now I have like an idea of the passage. Now I will read the options. Set Now see, the writer is doing what? So the writer of this passage, the unselfish Sheen, is doing what in the first passage? Is he setting out two opposing views about human nature? Like is setting out का मतलब है वो आपको पहले एक ओपिनियन दे रहा है एंड देन उसी का ही ऑपोजिट एक और ओपिनियन दे रहा है आप you can fall for this option because at the first you are seeing that why we are ruthless, and then you are seeing why we are kind, so you can might misunderstood कि पहले kindness की बात कर रहा है फिर ruthless की, तो दो opinions जो है opposing views about human nature वो set out कर रहा है. Actually में he is not doing this. नॉट नाइदर कि वो एक ओपिनियन दे रहा है फिर उसको अपोज कर रहा है, वो एक जनरल बात कर रहा है, justifying his opinion about. So for now we are going to cancel this. Might be possible that we don't find any better suitable option and we need to come towards this option, but for now हम इसको cancellation में लेके जा रहे हैं. Is he justifying his opinion about? Okay, I won't read it further because he, first of all, is not giving any of his opinion, and secondly, he is not justifying his any opinion in this passage. He is simply saying that general assumption है, general overview दे रहा है that human beings selfish होते हैं, apparently ऐसा है, फिर उसके बाद अगर हम kind हैं तो because we have something to do with the person, अगर हम अच्छे हैं तो it is because we have managed to control or transcend our innate selfishness or brutality. Okay, fine. He is not, first of all, giving his opinion, and neither he is justifying. The C option is saying he is describing a commonly held belief about people's behaviors. Yes, this option can be right because he is talking about a general assumption, mean a belief which is commonly held by the people, the general, about people's human beings are selfish, and here being selfish is the behavior. Referring to behavior, human beings referring to people, common belief referring to assumption, common referring to general. Yes, this is the most suitable answer for the first passage. Is he explaining why he thinks that? No, he is not explaining that why he thinks. He is just giving that we are apparently this or that or that. He is not talking about his own opinion, his own viewpoints. No, nothing. He's just describing that what why we are being selfish or why we are not selfish whatsoever. So this is the right option. That's how we attempt our multiple choice questions. We need to cancel out the options that we feel like कि नहीं ये वाला तो नहीं जा रहा है इसके साथ. The second thing is कि हमें ओवरव्यू लेना पड़ता है पैसेज का और ऑप्शन का भी ओवरव्यू लेना पड़ता है. थर्ड इज वी नीड टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्टर्स बिकॉज इधर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है. यू फाइंड सिमिलर वर्ड्स एंड यू मे फॉल फॉर दैट ऑप्शंस. बट जब आप एक चीज़ को समझ लेते हो, और ना हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ना, कहते हैं ना ऊपर ऊपर से पढ़ा और ऊपर ऊपर से पढ़ के जो समझे वही राइट ऑप्शन. कितना डिटेल में जाओगे तो आप इतना ज्यादा इसके अंदर उलझ जाओगे कि फिर आपको लगेगा कि ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है और ये भी. आपने एक ओवरव्यू, एक बर्ड आई व्यू लिया, फिर आपने उस बर्ड आई व्यू से एक एक आइडिया जनरेट किया, देन आपने उस आइडिया को अपने ऑप्शंस के साथ मैच करने की कोशिश की. और कभी भी राइट ऑप्शन तब तक सिलेक्ट नहीं कर लेते जब तक आप सब ऑप्शंस नहीं पढ़ लें और फिर आपको लगे कि हाँ कि यही वाला सही ऑप्शन है, या आपको लगे कि ये नहीं है तो फिर ये है. So the final decision comes after you match that idea with all the options. ये नहीं कि आपको लगा कि ओके बी इज राइट, मे बी व्हेन यू रीड द सी दैट इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द बी वन.
सो रीड करें सारे ऑप्शंस। और इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑप्शंस के सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को देखें, बिकॉज हम वी नीड टू फॉल फॉर द होल आइडिया। तो इधर भी हमें होल आइडिया ही लेके चलना पड़ेगा। तो हमने इसी वजह से पहले कोई कीवर्ड्स एज सच नहीं हाईलाइट किए, बिकॉज वी नीड टू रीड द होल सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड कि ये सही जा रहा है इसके साथ कि नहीं जा रहा। व्हाट पॉइंट, बिकॉज पूरे पैसेज का पूछा जा रहा था तो हमें पूरा पैसेज पढ़ना पढ़ना पड़ा। व्हाट पॉइंट इज मेड अबाउट रिचर्ड डॉकिंस अ बुक द सेल्फिश जीन, व्हाट, उसकी जो बुक थी सेल्फिश जीन में, उसमें क्या पॉइंट मेंशन किया गया या मेड किया गया या क्या पॉइंट जो है वो रखा गया। अब पैसेज नहीं गिवन है, बट यू कैन सी हियर इट्स रिचर्ड डॉकिंस, उसकी बुक के बारे में बात हो रही है नहीं तो, अगर नहीं हो रही होती तो फिर आपको मजीद स्किम करके स्कैन करना पड़ता। अब पॉइंट क्या मेड किया गया है हम बुक में पढ़ लेते हैं। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक एंड हियर इज द पॉइंट। The selfish gene is the book's name. ठीक है, ओके। Became popular, obviously popular। हो सकता है कि we don't find out the right answer in here, यहाँ तक तो हमें आगे भी पढ़ना पड़ सकता है, but for now यहाँ selfish gene की बात की जा रही है। Because it fitted so well with and helped to justify the competitive and individualistic ethos that was so prevalent in 20th century। ठीक है, पढ़ लिया मैंने। वट इफ आई डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, फिटेड सो वेल यहाँ क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मैंने पढ़ लिया, मुझे अच्छा एक चीज समझ आ गई। नाउ दिस इज अनदर सिनेरियो, और दिस इज अनदर अप्रोच टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि कुछ समझ आया है बट इतने अच्छे से नहीं समझ आया। अब हम ऑप्शंस देखते हैं सो दैट दीज ऑप्शंस कैन हेल्प अस टू clarify the point which is being given in the passage or the book। जब हम इस तरह के सिचुएशन में आए तो फिर ऑप्शंस आपको ना एक रोड मैप देते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं कि व्हाट यू नीड टू लुक फॉर द आंसर। बिकॉज नाउ वी आर कंफ्यूज कि क्या ये है आंसर नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। इट्स अपील ले इन रेडिकल नेचर ऑफ इट्स आइडियाज। जस्टिफाइज, यहाँ पे उसने डॉकिंस जस्टिफाई करा है। बुक doesn't have any sort of appeal, or neither it is in the radical nature of anyone's ideas. Its success was due to scientific support it offered. There is no discussion about any scientific support that was being provided for the selfish gene, not at least in here, not at least for its popularity. It presented a view that was in line with the attitudes of its time. We have read something about time. We have read something about the attitudes. The comparative nature, the individualistic nature is an attitude. This could be the answer. It took an innovative approach to the analysis of human psychology. Does this help evolutionary psychology that presented traits developed in prehistoric during what the environment? We have some information regarding the human psychology, but the book didn't do anything in that approach। अब आपका सी ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है? आपका सी ऑप्शन ये कह रहा है कि इस बुक ने एक ऐसा व्यू प्रेजेंट किया था जो कि उस वक्त के लोगों के एटीट्यूड के साथ बिल्कुल अलाइन कर रहा था। द पैरेलल थिंग, कि जैसा बुक ने कहा लोग भी वैसे ही थे। आपकी बुक भी इसीलिए पॉपुलर हुई और यही पॉइंट रख रही थी, बिकॉज इट फिटेड, द बुक फिटेड सो वेल विद इंडिविजुअलिस्टिक एथोस दैट वर सो, जो कि उस वक्त प्रिवेलेंट का मतलब जाहरी थे उस टाइम पे। और आपका सी ऑप्शन कह रहा है कि इसने एक ऐसा पॉइंट
प्रेजेंट किया था, जो कि इन लाइन इज रेफरिंग टू फिटेड सो वेल attitudes competitive and individualistic of its time, the 20th century. It presented a view that was in line. Okay. The rest we cancelled out. What does the writer suggest about prehistoric era in fourth paragraph? Now the question is regarding fourth passage. इधर थोड़ी बहुत ये गलती हो जाती है that we don't count sometimes. तो हम अगर पता हो तो हम second passage पे हैं, we will skip the third one, we will come to the fourth passage. Because the question is regarding fourth passage. राइटर ने प्रीहिस्टोरिक एरा के बारे में क्या सजेस्ट किया था? ऑप्शंस नाउ, यहाँ हमने पहले पैसेज पढ़ा था फिर ऑप्शंस पढ़े, यहाँ हमने पहले पैसेज पढ़ के थोड़ा आइडिया लिया एंड ऑप्शंस ने हमें हेल्प किया। अब द थर्ड वे टू सॉल्व दिस, अब हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स थी, जित देन मैनी पीपल बिलीव सोसाइटीज वर मोर कॉम्प्लेक्स। नेचुरल रिसोर्सेज की जो सप्लाई थी दैट वाज इनफ, relatively plentiful means that was more than enough. Most estimates population size are likely to be inaccurate. बहुत जितना उन्होंने estimate किया था वो population का size inaccurate था. Humans moved across continents more than, ठीक है, the movement, the migration was more. Now we have four ideas that society is complex थी, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हुई, पॉपुलेशन साइज की बात हुई, या ह्यूमंस की मूवमेंट यानी माइग्रेशन की बात हुई. We have four ideas. We will read the fourth passage. Here is the thing prehistoric era. It is important to remember that in prehistoric era, the world was sparsely populated. Sparsely populated. ये scarcity, आपने word सुना हो, it has the same meaning. कम कम. अब पॉपुलेशन का हमारे पास एक था ये सी पॉइंट. सी पॉइंट कह रहा है कि एस्टिमेट्स जो लगाए गए थे वो इनएक्यूरेट थे, और यहाँ पे जो एस्टिमेट उन्होंने लगाया है वो क्लियरली कह रहे हैं कि कम थी वहां पे पॉपुलेशन तब. According to some other estimates, 15,000, the population was only this much. And the population was less than. Humans at that time were hunter-gatherers who lived by hunting and collecting wild plants. With such small population densities, okay, so this we will cancel out. कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, पॉपुलेशन की बात हुई है, but they are not saying that it was incorrect. With such small population, it seems that prehistoric hunter-gatherers had to compete against for resources or had any need developed ruthless and competitive or to go war. Are we on the fourth passage? Yes. Population, unlikely hunter-gatherers had to compete. Unlikely. Yes, okay. That hunter-gatherers had to compete for resources or had any need to develop competitors or go to war. Okay. ये फोर पैसेज हमने सारा पढ़ लिया है. इसमें अभी तक हमने उनकी किसी मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, दैट दे मूव फ्रॉम हेयर टू देयर. ना ही हमने पढ़ा है कि सोसाइटीज मोर कम्प्लेक्स थी उस टाइम पे जब बहुत एज कंपेयर टू द पीपल बिलीव्ड. नो, वी हैव नॉट. वी हैव सिंपली रेड अबाउट दैट इतनी कम पॉपुलेशन के साथ it seems unlikely means it never happened. On that time, people had not to compete with each other or go to war for this natural resources. Because population kam thi, so obviously natural resources were more than enough. We have exactly the B option, that supplies were probably शायद इनफ थी, क्योंकि यहाँ पे भी इट हैड टू और अनलाइकली को रेफर किया जा रहा है कि श्योरिटी नहीं दे रहे कि हाँ ऐसा था, बट कह रहे हैं कि
सॉर्ट ऑफ समथिंग वाज लाइक दैट। आपका ऑप्शन भी श्योरिटी नहीं दे रहा, लेकिन रेफर उसी तरफ कर रहा है कि रिसोर्सेज वर इनफ दैट दे डिडंट हैव टू गो। सो आफ्टर रीडिंग द होल पैसेज, आप नहीं कह सकते कि आप इधर इस लाइन में अगर आपको वर्ड मिला है तो इसी लाइन में आंसर भी मिलेगा। In the passage 3 or in such questions, the approach to towards solving the questions or reading the passages or identifying the answers is different. तो वो अप्रोच जो आप पिछले फर्स्ट पैसेज में लेके चल रहे थे, सेकंड में, थर्ड में, या सॉरी फर्स्ट में या सेकंड में, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी जैसे ही यू आर ऑन द थर्ड पैसेज। तो यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑलरेडी कि हाँ मुझे ये इश्यूज आ सकते हैं, मैं अब इसको इस तरह से सॉल्व करूंगी। यहाँ पे आपको मजीद एक्टिव होना पड़ता है, शार्प होना पड़ता है, थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। और थोड़ा सा आप कहो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आप कॉमन सेंस, और अगर आप ऑलरेडी थोड़े से शार्प हो ना, तो आप इस पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। नाउ यू हैव थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 30th क्वेश्चन। The writers refers to Bruce Knopf work as a support for the idea। सबसे पहले तो इसका वर्क देख लें कौन से पैसेज में गिवन है। मोस्टली या तो पीछे तो हम नहीं कहीं पढ़ के आए हैं, आगे ही होगा। We will follow the flow। Here I can see it। The Bruce Knopf। राइटर ने उसके किस काम को रेफर किया है, कि किस आइडिया को सपोर्ट किया। लाइक एक आइडिया मैंने प्रेजेंट किया और मेरे आइडिया को ब्रूस कनाफ्ट के वर्क ने सपोर्ट किया, वो कौन सा आइडिया था। अब अगेन, इफ यू फाइंड कि दिस वे वाज मोर हेल्पफुल, के पहले ऑप्शंस का थोड़ा आइडिया ले लो, या दिस वे इज मोर दिस वे इज मोर हेल्पफुल के पहले पैसेज पढ़ लो, यू नीड टू नो द बोथ एंड देन यू हैव टू एक्सप्लोर व्हाट सूट्स यू मोर। ओके। Contemporary who live in same way as Profanas remark, as जैसे कि उसने भी रिमार्क किया। Maybe we will get the information further। जैसे कि उसने रिमार्क किया, क्या किया, that hunter gatherers characterized by extreme egalitarianism, Knopf observed that individuals don't accumulate property and possessions and have ethical obligations to share. They also have methods of preserving. Okay. Fine. Gathers characterized by, जो previous लोग थे, they used to have extreme political and sexual egalitarianism। He observed that individuals वो ये सब कुछ नहीं रखते थे और हर चीज शेयर करने के प्रॉपर पैटर्न्स थे उनके। They also have methods of preserving egalitarianism by ensuring that disparities of status don't arise। और उनके प्रॉपर मेथड्स थे। egalitarianism कहते हैं द द रिलेशनशिप ऑफ अ ब्रदर विद अनदर ब्रदर। ये वो डायरेक्ट जो हमारा ब्लड रिलेशनशिप वाला ब्रदर होता है ना, वो वाला नहीं, ओवरऑल सोसाइटी में, सोसाइटल लेवल पे जिसको हम कहते हैं। इट दिस वर्ड मीन्स दैट भाईचारा कह लें। तो जो पुराने लोग थे ना, वो ना तो कोई पोजेशन रखना उन्हें शौक था, कुछ भी नहीं, उनकी प्रॉपर ऑब्लिगेशंस थी, एथिकल ऑब्लिगेशंस थी कि हम किस तरह चीज़ों को डिवाइड करेंगे। और अपने भाईचारे को प्रिजर्व करने के लिए वो इंश्योर करते थे कि डिस्पैरिटीज, यानी डिस्पैरिटीज ऑफ द स्टेटस डोंट अराइज। इफ यू डोंट नो द मीनिंग व्हाट इज डिस्पैरिटीज, ऑन द डे ऑफ द पेपर यू माइट कम अक्रॉस द फ्यू वर्ड्स कि जिनका नहीं पता होगा, एंड इट इज वेरी नेचुरल एंड इट्स फाइन। आपको नहीं पता, नहीं पता, देयर आर बिलियंस ऑफ वर्ड्स, आपको हर चीज का तो नहीं पता होगा। फिर आप थोड़ा सा खुद से मीनिंग जोड़ के कोशिश करें कि आपको समझ आए चीज क्या। डिस्पैरिटीज का नहीं पता, अच्छा स्टेटस के अंदर शायद इख्तलाफात, या हाई स्टेटस, लो स्टेटस, मिडिल स्टेटस, ये चीजें ना पैदा हो, इसका यहाँ ये मतलब बना सकते हैं आप खुद से।
इगैलिटरिज्म क्या होती है पता नहीं भाई, लेकिन वो रेफर इगैलिटरिज्म को कर रहा है। अच्छा ठीक है, वो इगैलिटरिज्म को अवॉइड करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये सारी बातें आप इस तरह से खुद से मीनिंग बना लें। आप इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में रहने दें, जो समझ आपको आ रही है उसको उर्दू में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करें। Now, our option A is selfishness is relatively recent development in human societies. Yes, it could be because it was not before. In the prehistoric era, it was not a part of those people's life. They were not selfish. This could be our right answer. कि recently अभी हुई है पैदा। Only people in isolated communities can live. No, we haven't read anything like that. Very few lifestyles have survived unchanged. No, hunter-gatherer cultures worldwide are declining. No, nothing. ये तो वर्ड्स ही नहीं हमने इधर पढ़े कहीं जो ये बात कर रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन हियर। राइट। महीन। Understood that how we have solved the multiple choice questions. Okay, now let's move towards the summary completion. The first thing you need to do is don't even read the passage first. खुद को परेशान भी मत करें, ओहो क्या, सबसे पहला काम करें ये वर्ड्स फाइंड आउट करें। और ये मोस्टली गिवन होते हैं। इनका काम है आपको बताना कि ये पैसेज हमने कहाँ से लिया। एंड फॉर्चुनेटली while solving our questions we have already read these things। ब्रूस केनाफ्ट रिसर्च के बारे में भी हम पढ़ चुके हुए थे। और कंटेम्प्रेरी, ये रहा कंटेम्प्रेरी हंटर गैदरर ग्रुप्स की जगह दे हैव यूज वर्ड सोसाइटीज। अब हमारा जो समरी आई है ना, इसको सबको मैं थोड़ा हम्म, इस पैसेज से आई है। इट हैज कम फ्रॉम हेयर, लेकिन एंड कहाँ पे हुई है वी डोंट नो येट। वो हम देख लेंगे, या पहले देखना चाह रहे हैं पहले कर लें, बट वेस्टेज ऑफ टाइम। समटाइम्स क्या होता है हमें ना स्टार्टिंग नहीं मिल रही होती, लेकिन अब आपने 30 सेकेंड्स इसको फाइंड आउट करने में लगा दिए, आपको स्टार्टिंग नहीं मिल पा रही कि ये समरी कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस पैसेज से। लुक फॉर द अदर थिंग्स, एंडिंग्स पकड़ लो। मैरिज, the word see I can see a word marriage here. Okay, so this summary has come from here, this might be the ending of the passage। तो मैक्सिमम ये इधर कहीं से शुरू हुई है। अब आपको ट्रैक मिल जाता है, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये कहाँ से आई होगी। सो दीज आर अगेन सम व्यू वेज टू फाइंड आउट एंड टू सेव टाइम, बजाय हम मैं कंटेम्प्रेरी बैठे ढूंढती रहूं और 2 मिनट इसमें गुजर जाए। नाउ आई हैव लाइक अ प्रॉपर थिंग कि इधर से ही आया। और मोस्टली जब थर्ड पैसेज होता है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग ऑफ द पैसेजेस से, मिडिल क्वेश्चन आता है मिडल ऑफ पैसेजेस से, और अब ये लास्ट वाले देखना मोस्टली आएंगे एंडिंग्स से। तो पहला जो आपका होना चाहिए है, यू यू नीड टू लैंड ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ द पैसेज। अगर क्वेश्चन आपका सेंटर्ड है, मिडल में है, तो आप भी पैसेज के मिडल में जाओ, उधर से आपको स्किमिंग करके इजीली मिल जाएगा वो आंसर। नाउ इट्स लाइक द वन वर्ड्स occur जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हुए हैं। कंप्लीट द sentences। Bruce Knapp's research shows contemporary societies tend to exhibit high level of, they have put a uh, क्या कहते हैं उसको यहाँ पे उन्होंने, व्हाट इज दैट वर्ड, प्रेशर प्रेशर डाला हुआ है उसको, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं मेरे जहन में नहीं आ रहा। जहाँ पे हम किसी चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, उसका एक प्रॉपर वर्ड है। आपने अब पैसेज में से वो चीज उठानी है जिसके ऊपर पैसेज में भी, व्हाट इज दैट वर्ड, जिसको हाईलाइट किया गया हो, एम्फसाइज किया है।
किसी चीज पे यू नीड द वर्ड ऑन विच दे हैव एम्फसाइज्ड इन द पैसेज। ये जो छोटे छोटे से होते हैं ना आपके वर्ड्स, हाई लो, ये आपको बड़ा हेल्प करते हैं राइट आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो टेंड टू एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब है दे यूज टू हैव व्हाट, हाई लेवल ऑफ व्हाट। वी नीड टू राइट ओनली वन वर्ड। We will start from here कि ब्रूस केनाफ शोज के जो कंटेम्प्ररी हंटर गैदरर ग्रुप्स थे, गैदर्स आर करेक्टराइज्ड। करेक्टराइज्ड का मतलब यही है, ऑब्वियसली दे यूज टू possess that thing, they used to have by extreme, see, extreme and high level, they are referring to each other. Political and sexual egalitarianism, extreme high level of पॉलिटिकल आएगा यहाँ पे, हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल। व्हाट इफ मैं इधर पॉलिटिकल ऐड कर दूं? ओके, हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। अरे ये तो बड़ा वियर्ड आंसर बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं इधर सेक्सुअल ऐड कर दूं तब भी हमें चाहिए है वो वर्ड जो मीनिंग कंप्लीट होल्ड करे। वी डोंट नीड एक्स्ट्रा थिंग्स कि अच्छा वट एवर वो जो भी चीज का रख रहे हैं। दिस द राइट आंसर इज egalitarianism. They tend high level of egalitarianism in all areas. The word all areas of life is referring to both political and sexual. It's covering that meaning very well. अब अगेन हम इसी को फॉलो करते जाएंगे और हमें अपना नेक्स्ट आंसर जो है वो इधर से कहीं से मिल जाएगा। These societies also employ strategies to prevent differences in dash. We have already read कि preserve and prevent are referring to same word। ये तो हम ऑलरेडी बिकॉज पढ़ चुके थे फॉर आवर लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो थोड़ा जल्दी हो रहा है। जब आप कोई चीज़ पढ़ें जिस पर टाइम इन्वेस्ट करें तो वो इस तरह करें कि अगर अगेन उसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू डोंट नीड टू फाइंड और रीड दैट अगेन। Disparities is referring to differences. This is a fast and forward way to attempt all questions in 60 minutes also. Differences in occurring, rise, what? Status. The status is answer here. Next question. Kung follow a custom whereby the credit for one person's success at what is given to another member of the group. Here is I can see the Kang people. For example, swap means exchange arrows before going hunting. And when an animal is killed, they acclaim does not acclaim means credit does not go to a person who fired the arrow. यही बात हमने किया कि वो कुछ ऐसा क्या करते हैं कि जिसका क्रेडिट उसकी बजाय पूरे ग्रुप को मिलता है। बट टू अ पर्सन द एरो बिलोंग्स, बल्कि उस बंदे को जाता है जिसका वो एरो एक्चुअली में था, ना कि उसने जिसने मारा। अब एड, अब यहाँ पे आप क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होगा? व्हाट इज द एक्टिविटी, द वर्ब एक्टिविटी इज हैपनिंग हेयर? पर्सन सक्सेस एट एरो, वन वर्ड लिखना है, एरो तो कुछ भी नहीं है। एट किल्ड, whereby the credit for one person success at killed is given। at killed अगर killing होता है यहाँ पे it might have make some sense, ये killing अच्छा, but they have given you the thing which is happening किस दौरान? hunting में। hunting में जो क्रेडिट है वो उस एक को नहीं बल्कि ग्रुप को जाएगा। यहाँ हमने भी पूरा मीनिंग अंडरस्टैंड किया एंड देन वी एंडेड अप विद द आंसर। और अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो लग रहे थे आंसर हो सकता है, तो हमने उनको फिट करके देखा और हमने रीड किया अपनी स्टेटमेंट को कि सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे, यानी हम वो रॉन्ग वर्ड चूज कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स हु बिहेव इन अ डैश मैनर आर पनिश्ड, पनिश किया जा रहा है किनको? जो एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करें, वो कौन सा मैनर है? उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है ग्रुप में से। वी हैव ended here, so next, इंडिविजुअल्स अलग, वो लोग, एक एक लोग। इंडिविजुअल्स द पर्सन, यहाँ पे पर्सन को रेफर कर रहा है।
becomes too domineering, the other members of the group ostracize them. ऑस्ट्रेसाइज का मतलब, अगर नहीं पता तो खुद से बना लें कि उनको ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, शायद ऑस्ट्रेसाइज का मतलब हो यहाँ पे एक्सक्लूड करना, क्योंकि बाकी सारी बातें तो यही लिखी हुई हैं ग्रुप। तो अच्छा वो पर्सन क्या कर रहा है, वो बिकम्स बन रहा है डोमिनेटिंग, यहाँ लिखा है वो बिहेव वैसे कर रहा है। ओके, सो ये डोमिनेटिंग ही होगा आंसर। बहुत डोमिनेटिंग मैनर में जो बिहेव कर रहे हैं उनको वो एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेसाइज। अब आपने यहाँ से वर्ड ऑस्ट्रेसाइज सीखा, इनफैक्ट आपने यहाँ डोमिनेटिंग सीखा, आपने इगैलिटरियनिज्म सीखा, इसके अलावा भी थे कुछ एक दो। यस, डिस्पैरिटीज, द डिफरेंसेस। तो अगर आपने ये वर्ड्स यू हैव लर्न्ड, सो यू कैन यूज देम लेटर इन योर राइटिंग एज वेल, इन योर स्पीकिंग एज वेल। And the last one, women have, okay, from group, and women have considerable amount of what, considerable भी यहाँ पे इस तरह हाई को ही रेफर कर रहा है कि एक अच्छी अमाउंट की इनके पास होता है। क्या होता है, ऑफ डैश इन चॉइसेस रिगार्डिंग वर्क एंड मैरिज। अमाउंट ऑफ डैश मैरिज, यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा था। वुमेन इन हंटर gatherer groups often benefit high level, see, of autonomy. The word answer here is autonomy in choices of getting this and that. And how simple, interesting, and fun to do this. आप सबसे पहले बेशक ये कर लें पेपर में, if you're good at, like, if I have to say that what I'm good at in reading, I believe I am very good at notes completion, the one word answers, and true false. So I will do them first because I know my potential is good in that question. So मैं अच्छे से वो कर लूंगी, and I will make sure then कि अगर मैं इसमें अच्छी हूँ तो मैं अच्छे से करके आऊँ। तो अगर आप इसमें अच्छे हैं, आप जिस क्वेश्चन में यू फील लाइक कि आप ज़्यादा बेहतर से परफॉर्म कर पाते हैं उसको पहले कर लें। नाउ यू कैन ज्वाइन द मीटिंग एंड देन वी विल डू दिस 36 to 40। इसको आप कर लें ज्वाइन जल्दी से।